پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے مبارک جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آج شب پھر آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار خادم آداب بجا لاتا ہے۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی پر کی جانے والی خوبصورت پرستش کے لیے اور دعاؤں کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اور آپ خواب اسکائپ آئی ڈی پر ہیں یا ان فیس بک کے متعدد پیجز پر یا یوٹیوب پر یا واٹس ایپ میں ہم خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو باہم مل کر سیکھنے والے ہوں۔ اور میں اعتقاد اور ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے ماضی رفتہ میں خداوند نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا، آج پھر سے وہی خداوند بدلا نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے کلام کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جو در حقیقت خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، یوحنا عارف کی معرفت ملہم ہوا، اس کے 21 باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ مل کر میں 21 باب کی 8 آیت پر غور کروں گا، جس میں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سی آگاہی، خبرداری اور انتباہ اور آگاہ ہونے کی باتیں ہیں۔ اس سے پیشتر ہم دیکھ چکے ہیں کہ مقدس یوحنا کو خدا بذات خود اپنے تخت پر سے ہم کلام ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں، اور میں پیاسے کو آب حیات سے مفت پلاؤں گا۔ اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں جو غالب آئے وہ ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا جو غالب آئے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں پہلے ہی ان گزری آیات پر بات کر چکا ہوں۔ اور بائی دا وے، اگر آپ ان آیات پر بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کی آیات پر بھی، تو کیوں نہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں جس کا نام ہے ابدی بادشاہ، اور وہ پوری مکاشفہ کی کتاب سے متعلق ہم نے گزرے 4 سال، اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا، ان میں جو کچھ سیکھا ہے وہاں پر خزانہ کے طور پر آپ کے لیے موجود ہے۔ اور یوں میری فیس بک کو بھی اگر سکرول ڈاؤن کریں تو آپ کو گزرے ہفتے اور اس سے پہلے کی یہ جو ٹیچنگز اور شیئرنگز ہیں آپ کو مل پائیں گی۔ لیکن آیت 8 میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی غور طلب ہے، کیونکہ پھر 9 آیت سے ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ لیکن 8 آیت غور سے سنیے گا۔ اس آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں، سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا، کان لگا کر۔ کوئی اور آواز ہمارے کانوں میں اس وقت نہ پڑے،
प्रायोरिटी, अवलियत और तरजीह खुदा के कलाम को दीजिए। क्या लिखा है? मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। और याद रखिए, ये वो पहला हवाला नहीं या आखिरी नहीं जिसमें ये बातें लिखी हैं। आप चाहें तो बाद में ऐसी ही फरिश्त पहला कुरिन्थियों का खत, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो उसका 6 बाब और इसकी 9 और 10 आयत में भी ऐसी ही फरिश्त मौजूद है और यही सजा उन लोगों के लिए भी मौजूद है। और फिर अगर आप मुकाशिफा 21 बाब और उसकी 27 आयत देखें तो उसमें भी ऑलरेडी यही फरिश्त मौजूद है। और अगर मुकाशिफा 22 बाब और उसकी 15 आयत देखें तो वहां भी इसी तरह की ही फरिश्त मौजूद है। एक बार नहीं, 6 बार खुदा रूह कुद्स की तहरीक से और अपने खादम यूहन्ना के जरिया और आज वो अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के जरिया अहले जहान को और मुझे और आपको भी आगाह कर रहा है। ईमानदारों, मोमिनों, आज की बातें जो मसीह के बगैर हैं उनके लिए तो हैं ही, लेकिन याद कीजिए कि ये बातें जिन पर हम आज गौर खोज करते हैं ये मेरे लिए और आपके लिए भी है। हम अपने आप को भी इस कलाम के तराजू पर तोलेंगे। जब यहां पर लिखा है मगर बुज़दिलों और बेईमानों, इन बातों पर हम गौर खोज करेंगे, लेकिन याद रखिए यहां उन तमाम लोगों के नामों की या कामों की फरिश्त है जो मसीह के बगैर या मसीह में होकर करते चले जा रहे हैं। ये उनके कामों की हमें फरिश्त नजर आती है। और दूसरी बात, जब यहां पर लफ्ज आया है मगर बुज़दिलों, मुझे नहीं मालूम कि आपके जहन में इस फरिश्त के मुताबिक जो 21 की 8 में पाई जाती है और फिर आखिर पर है इनका हिस्सा गंधक और आग से जलने वाली झील होगा। आप यहां पर बुज़दिल से क्या मुराद लेंगे मैं नहीं जानता। आपकी सोच आपको मुबारक, बहुत अच्छी सोच हो सकती है खुदा के कलाम के मुताबिक, लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यह बुज़दिल कौन है, किन की बात हो रही है। और अभी वक्त है कि हम सोचें कि यह बुज़दिल अपने आप को हम इससे बरी नहीं कर सकते। ये बुज़दिल वो हैं जो खुदाबंद यीशु मसीह की गवाही नहीं देते, जबान बंद है,
दूसरे लोगों के सामने बेजबान और गूंगे बुत हैं। चर्च में बहुत कुछ होंगे, क्वायर्स में बहुत कुछ होंगे, अपने हल्काए अहबाब में जो मसीही है वहां पर बड़े चौधरी होंगे और पन्ने खान। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि यीशु मसीह की गवाही देने में इंज लगता है जिवें कोई शै उन्होंने सूंघ गई है। बेजबान है, उनकी जबान बंद है और यूं बुजदली का मुजाहिरा करते हुए खुशखबरी का कलाम ना सुनाते हुए गोया बहुत से लोगों को जहन्नम रसीद करने के लिए बजाते खुद अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो यीशु की गवाही नहीं देते। सोचने का मकाम यह है, कहीं ऐसा बुजदिल शख्स ईमानदारों ये मुझ में और आप में तो कहीं नहीं बैठा हुआ। वो कौन सा आखिरी वक्त था कि जब हमने दिलेरी का मुजाहिरा किया और इस इंजील और इस खुशखबरी का इश्तहार दूसरों के सामने दिया? सोचिए कौन सा आखिरी वक्त था। और अगर सोचते सोचते सोची ही पै गए तो इसका मतलब यह है हमें कबूल करने की जरूरत है, खुदावन मैं बुजदिल हूं, मुझे माफ कीजिए। लेकिन इसके बाद ऐसा ना हो कि ये इकरार करने के बाद जिथे हां उत्थे ही रहमा, इंज ना होए। फिर नेक्स्ट हमें कुछ कर दिखाना है ताकि हम बार ये इकरार ना करते फिरें, खुदावन मैं बुजदिल हूं। और इसके लिए ये एक ऐसा ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं आगे बढ़ के बताता हूं। मगर बुजदिलू और बेईमानू, बेईमान याद रखिए कि यहां पर बेईमान उन तमाम लोगों के बारे में पहले है जो खुदावन यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं करते या मसीह यीशु पर वो ईमान नहीं लाते। वो तमाम लोग बेईमानों में शामिल हैं जिनका ईमान नहीं है कि यीशु मसीह मुजस्सम खुदा है जो दुनिया के गुनाहों के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, मर गया, दफन हुआ, जी उठा और उस पर ईमान लाने के वसीला से मेरी निजात और मेरी खलासी, मेरा छुटकारा, मेरी मुआफी और हमेशा की जिंदगी है। जिस किसी का ये ईमान नहीं है, सिर्फ गिरजों पर और सलीबों पर ईमान है और पादरियों पर ईमान है, कुछ नहीं बनेगा। जे डिनोमिनेशंस पर फख्र करने से कुछ नहीं बनेगा जब तक के खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के तख्त पर बतौर राजा बैठा ना लें और अपने जीवन का कंट्रोल अपने खुदावन के हाथों में ना दे दें। उस वक्त तक हम बेईमान के बेईमान ही रहेंगे। और दूसरी बात, ईमान लाने के बाद भी अगर हम बेईमानी का मुजाहिरा करें, ईमान लाने के बाद भी
अगर हम बेईमानी का मुजाहिरा करें, ईमान के साथ हालात को बदलते हुए ना देखें, ईमान के साथ तूफानों को हुक्म करें और वो मौकूफ ना हो, ईमान के साथ दुआ करें और फिर कुछ हलचल ना हो, तो फिर सोचना है कि मैं किस अंदाज से और किस तरीके से खुदा से बात करता, कलाम करता और खुदा की सुनता हूं। वो कैसा ईमान है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। मती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 6 बाब में जब शागिर्द कश्ती में थे और तूफान आ गया और मसीह खुदावन को उन्होंने जगाया, और अगरचे मसीह ने तूफान को, आंधी और हवा को हुक्म दिया कि वो मौकूफ हो जाए, लेकिन उसके बाद मसीह ने मरकस और लूका में तुम्हारा ईमान कहां है कहा है मसीह ने। लेकिन जब हम ओरिजिनल जबान में देखें तो वहां पर बुज़दिल का लफ्ज भी, खासकर जो बेएतकाद के लिए इस्तेमाल हुआ है मती की इंजील में, वो बुज़दिल का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। तुम्हारा एतकाद कहां है? तो सोचना यह है कि जब हम तूफानों की भंवर में हिचकोले खा रहे होते, हालात के तूफानों की बात कर रहा हो, तो उस वक्त मैं और आप कहां होते हैं और हमारी निगाहें किस तरफ लगी होती हैं? मैं जानता हूं हम इंसान हैं, हम बशर हैं, हम सहम जाते हैं, हम डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन कहीं ईमान का दामन छोड़ तो नहीं देते। गौर करना है अपनी जिंदगी के बारे में, और यह भी बात याद रखने की है कि खा कोई शख्स कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खा वो कितना ही नाइस आदमी क्यों ना हो, अगर यीशु के बगैर है तो उसका ये अच्छा होना और नाइस होना तेरी नेकी किसे कम ना आवे, और हमारी नेकियां रास्तबाजी के काम नापाक लिबास की मानिद है। कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो सोचना है अपने आप के बारे में कि कहीं मैं बुज़दिली का मुजाहिरा तो नहीं करता, और क्या मैं ईमान का मुजाहिरा करता हूं या बेईमानी का। और अगर आप ईमान में अपने आप को कमजोर पाते हैं तो फिर इब्रानियों 11 बाब आप पढ़िए, मुमकिन हो तो 12 भी तलावत कीजिए। बहुत सी तरक्की होगी इन अबवाब का मुतालिया करने और इनकी तलावत करने से। इसके बाद लिखा है, और गनौने लोगों की बात हो रही है। गनौने लोगों से मुराद ऐसे लोग जो गनौने काम करते हैं। और गनौने काम क्या है? हर वो काम जिसका पाकीज़गी से ताल्लुक नहीं है, हर वो काम जो ज़ाते इलाही की मर्जी के बरखिलाफ है, वो काम गनौना है।
اور ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ دن میں کہیں کوئی گنونا کام کیا تو نہیں ہے میں نے، کیونکہ ان بائبل سٹڈیز کا ذرا بھی فائدہ نہیں اگر ہم ایک گیٹ سے یعنی کان سے ڈالتے ہیں اور دوسرے گیٹ یعنی کان سے نکال دیتے ہیں، تو فائدہ تب ہے کہ یہ جو کڑوی گولیاں روح القدس کی تحریک سے ہمیں دی جا رہی ہے، ان گولیوں کو ہم نگل جائیں۔ اگلی بات یہاں پر لکھی ہے، اور خونی سے مراد قاتل ہے، اور ایسا شخص جو ہتھیاروں سے دوسروں کا خون کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، شاید ہم جو یہاں آن لائن ہیں ہم سوچیں شکر ہے کہ میں خونی نہیں ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی اسلحہ ہے، نہ ہی میں نے کسی پر چھرا چلایا ہو، اس معاملے میں بری ہوں۔ شاباش، اچھا ہے کہ ہم نے کسی کا خون نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف بزرگ یعقوب کہتے ہیں کہ زبان زہر قاتل سے بھری ہے، یہ ننگی تلوار کی مانند ہے۔ اس زبان کی تلوار سے نامعلوم ہم نے کتنے لوگوں کا قتل کیا، رشتے ٹوٹ گئے، اور کئیوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، اور کئیوں کے لیے ہمارے دروازے بند ہو گئے۔ قتل کرنا ہتھیاروں سے ہی نہیں ہوتا، بد کلامی اور زبان درازی اور بدگوئی اور عیب جوئی سے بھی ہوتا ہے۔ لگام دیجئے اس زبان کو۔ ہم نے گھوڑوں کو لگام دینا سیکھ لیا، جنگل کے بادشاہ کو اپنے قبضہ میں کر لیا، چاند تک پہنچ گئے، بحری بیڑوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا، کلام کہتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس 2 اونس کے گوشت کے لوتھڑے کو جو ہمارے منہ میں اچھلتا بہتا ہے کنٹرول نہیں کر پائے۔ جب تک ہم اس زبان کو بھی خداوند خدا کے قابو میں نہیں دیں گے، اے خداوند پاک روح کی قدرت سے میری زبان پر کنٹرول کیجئے، تاکہ میں ایسی بدگوئی عیب جوئی نہ کروں۔ کوئی کیا کرتا ہے کہتا ہے، ہوتا رہے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ راست بنا لیں، اپنی زبان کی تلوار سے قتل کرنا چھوڑ دیں۔ اگلی بات یہاں پر ہے، اور حرام کار، یاد ہے کسی وقت میں نے یہ کہا تھا، حرام سے مراد ناجائز، فعل بد، گناہ، اور حرام کار پشتو زبان کا بھی لفظ ہے جس کے معنی ہے کام کے، کام، ورک۔ تو حرام کار سے
मुराद बुनियादी तौर पर यह है कि हर वो शख्स जो नाजायज काम करने वाला है। लेकिन याद रखिए, यह नाजायज काम जो यहां पर है, इसका ताल्लुक हर तरह के जिनसी गुनाह से है। हर तरह के जिनसी गुनाह से। हम किसी ही तरह का कोई जिनसी गुनाह क्यों नहीं करते, उसका ताल्लुक हराम कारी से और इस लफ्ज से जो यहां पर है जरूर है। और याद रखिए, मैं और आप ईमानदारों, आपसे बात हो रही है कि मैं और आप पौलुस रसूल करंतस की कलीसिया को कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन क्या है? खुदा का मकदस। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह उसमें बसा हुआ है। यह मकदस है, खुदा के रहने के लिए जगह। क्या हम चर्च में यानी बिल्डिंग में जाकर इतवार वाले दिन कुप्पी पीते हैं, सूटी लगाते हैं वहां पे जाके? जरा सोचना है। नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये खुदा का घर, खुदा की हजूरी है, मुझे यहां ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर देखिए, खुदा यह भी कहता है, मैं पत्थर के बने हुए घरों में नहीं रहता, अब वो मेरे दिल में और आपके दिल में रहता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस मकदस में मैं और आप किस किस तरह के गुनाह करते हैं, सोचने का मुकाम नहीं है? ऑफ कोर्स। और मसीह की शरीयत मूसवी शरीयत से ज्यादा सख्त है। अगर तूने नजरे बद से किसी दोशेजा को देखा ही तो तू गुनाह के अमल से गुजर गया। यह मसीही तालीम है, दूसरे मजाहिब में नहीं है। वो अमल से गुजरने के बाद गुनाह मंसूब होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इवन सोच से गुनाह का आगाज होता है। नेक्स्ट, यहां पर जो लफ्ज आया है वो जादूगरों, जादूगर। पुराने वक्तों में कई ऐसे लोग थे जो मुर्दों की रूहों के साथ अपने नफ्सियाती ताल्लुकात कायम करते और बदरूहों के साथ अपने रवाबत करते, मुवक्कलों के साथ। यह कदीम दौर से, मादी और फारसी दौर से चला आ रहा है। और उनके जरिया से वो अपना उल्लू सीधा करते जो खुदा की मर्जी और खुदा की कुव्वत और खुदा की कुदरत से नहीं होता था, शैतान की ताकत और कुव्वत के तहत होता था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन हमारी कम्युनिटी में भी, जिनके नाम के आगे मसीह लिखा होता है और नीचे ये कि हर किस्म का जादू टूना, फलां 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 फलां। और फिर क्या किया आपके कदमों में, वो आपने कई बोर्ड पढ़े होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मसीही कम्युनिटी और बरादरी पर ऐसे लोग एक दबा का सबब है। नेक्स्ट, और बुत परस्तों, बुत परस्त
यहां पर मैं किसी स्टैचू ही की बात नहीं करता कि उसके आगे झुकना और अपनी मनाजात मानना। नो, मैं सिर्फ उसी की बात नहीं करता। मुझे यूं कहना चाहिए, हर वो चीज जो वक्त खुदा को देना चाहिए उस वक्त पर डाका डालती है, और वो वक्त उस चीज को दिया जाता है। ये चीज मेरे लिए और आपके लिए बुत परस्ती है। अगर आपने दुआ का कोई टाइम सेट किया हुआ है, या किसी ने घर पे कहा आए फिर हम दुआ कर लें केवल इसके कि हम सोएं, तो हमने कहा ठहर जा जरा, ठीक है दुआ करते हैं, एक मिनट जरा ये सीन देख लें, इसके बाद ड्रामा खत्म हो जाना है। एदा मतलब ए होया कि दुआ कोई अहमियत नहीं रख दी, ड्रामा अहमियत रखदा है। ए हुई बुत परस्ती है। हर वो चीज जो खुदा के हुजूर वक्त गुजारने में रुकावट पैदा हो, वो आइडोलेट्री है, यानी बुत परस्ती। खा वो कोई इंसान हो, खा कोई रूहानी रहनुमा हो या सियासी रहनुमा हो, ओ नो, खुदा से बढ़कर कोई और नहीं है मेरे अजीजों। आए हम वापस आए अपनी जगह पर जहां पर हमें होना चाहिए। और फिर लिखा है, और सब झूठों का हिस्सा। झूठे, शुक्र है कि ऐसी झूठ नहीं बोलते, है ना, है ना। हां, सोचना है, सोचना है। मैं इस बात के बारे में कहूंगा, हम इंसान हैं भाइयों बहनों, लेकिन इस वक्त बात मुझसे और आपसे पाक रूह की तहरीक से पूछी जा रही है कि दिन में मजाक मजाक में खा अपनी फैमिली या जाए मुलाजमत पर या स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में या इवन स्काइप आईडीज पर खुदा के लोग भी और खुदा के लोगों के साथ भी कितनी बार हम कहते हैं, ओ जी मेरा माइक नहीं सी खुलता पिया, और कर कुछ और रहे होते हैं, किसी और काम में इन्वॉल्व होते हैं, और ना मालूम और क्या क्या। हाँ, टेक्निकली प्रॉब्लम हो भी सकती है, लेकिन हर वेले नहीं होती। यह सिर्फ एक मिसाल है, और बहुत सारे पहलू हैं। यह कोई इश्यू नहीं बना लेना कि मैंने यह कहा है। बहुत सारे और पहलू हैं जिन पहलुओं के एतबार से शायद हम उसको झूठ ही नहीं समझते और बोलते हैं। लेकिन लिखा है, इन तमाम लोगों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। पहले गालिब आने वालों को आबे हयात के चश्मा से पिलाऊंगा, नए यरूशलेम में होंगे। अब वो जो मगलूब हैं उनके लिए यहां पर वादा है कि वो गंधक और आग से जलने वाली झील में जाएंगे। और फिर यह भी लिखा है, यह दूसरी मौत है, सेकंड डेथ। एक मौत तो फिजिकली हर बशर को इस मौत के प्याले से पीना है, इसका मजा चखना ही चखना है जो कोई इस दुनिया में आया। और सेकंडली दूसरी मौत से मुराद खुदा और मेरे बीच में जुदाई, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए। और मेरा ठिकाना गंधक और आग से जलने वाली झील होगा।
याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद भी अगर हमारी जिंदगी में कोई चेंज नहीं, हमने सिर्फ कवर चढ़ाया हुआ है, अंदर कुछ और है, बुरके के अंदर मौलवी है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि वो तमाम जो मुनाफिकीन हैं, 2 नंबर रियाकार, उन तमाम का भी ठिकाना यहां ही है। लेकिन मसीह के पाने के बाद, मसीह पर ईमान लाने के बाद हमसे गलती खता सरजद हो जाती है, लेकिन करते नहीं रहते। जब हो जाए, खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ आकर इकरार करें और तौबा करें और फिर उन राहों पर ना चलें। यह ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर कंटिन्यूली हम अपनी पुरानी राहों पर चलते चले जाते हैं, अपने आप को भी उल्लू तो बना ही रहे हैं, लेकिन यूं लगता है जैसे हम खुदा को भी धोखा देते हैं। आए हम अपनी सोचों को दुरुस्त कर लें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं। एक छोटी सी दुआ हम मिलकर करें। ए कादरे मुतलक खुदा बाप, दिल की अथाह गहराइयों से आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने मुझसे और मेरे इन भाइयों बहनों से किया है, शुक्रगुजारी करता हूं। इस चैलेंज के लिए और हमें हिलाने के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावन, इस जंग में हमें फतह याब रखिए, हमारा सर बुलंद हो, हम इन गुनाहों के मुर्तकिब और भी जो गुनाह हैं उनके मुर्तकिब ना हो। हमसे जितने भी आज तक ये पाप हुए हैं, इकरार करते हैं कि खुदा बाप हमें मुआफ कीजिए, यीशु के नाम से मुआफ कीजिए, और आइंदा के लिए हमारी सोचों को दुरुस्त कीजिए ताकि हम आपके कलाम के सांचे में ढलते चले जाएं। वो तमाम अजीज जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स लिखते और लिख चुके हैं, उन सब को आपके स्पुर्द करता हूं। यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में आप काम कीजिए, बीमारियां काफूर हो जाएं, टेंशन्स जाती रहें, मुसीबतों के पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं, कब्र जैसी मूजी अमराज यीशु के नाम से खत्म हो जाए, और आपका जलाल मेरे और मेरे इस भाई और बहन की जिंदगी से कसरत से जाहिर हो। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन एंड आमीन। दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को भारी बरकत बख्शें, बाद में भी सोचते रहें। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।